करेंगे तब उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। See, from Abel, we learned that we must come to God by way of blood sacrifice in order to get right with God. और हम लोग हाबिल का जो आराधना से देखे थे कि कैसे हम लोग जो है लहू का बलिदान लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और जिसके जरिए परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। Abel's sacrifice was accepted because it involved blood and testified to the death of a substitution. Muted. You're muted. Abel's sacrifice was accepted because it involved blood and also testified to the death of a substitute. Sibir sir. Sibir sir. हाबेल की जीवन की भी क्या है वो एक गवाही ठहराई गई क्योंकि वो भी एक बदले में बलिदान दिया गया है। Abel, My sound is not coming. Yes sir. Coming? It was not coming. Now it is coming sir. Okay. Shall we proceed? Yes, uncle. Yes, Abel knew what God demanded and by faith acted upon it. और हाबिल जानता था कि परमेश्वर को क्या जरूरत थी और उसी के अनुसार हाबिल ने कार्य किया था। See, the offering of Cain was quite different. देखिए, जो कैन की जो बलिदान थी वो थोड़ा सा अलग था। He represents all the good things people try to offer to God. और वो क्या दर्शाता है ना, जो लोग भले भले जो कार्य है, भले भले चीजें हैं, उन चीजों को लोग जो है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है, उस बात को हाबिल का बलिदान दर्शाती है। See, Cain's offering was the result of his own hard work and is offering it to God as a sacrifice for sin. और हम लोग देखते हैं कैन का जो बलिदान उसकी कठिन परिश्रम को दर्शाता है। उस कठिन परिश्रम के अनुसार उसने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का प्रयास किया है। See, we learned that two important things about worship that pleases God. और हम लोगों ने देखा था कि दो ऐसी बलिदान है जो बलिदान के द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। Number one is worship that pleases God requires the right sacrifice. और सबसे विषय है आराधना जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, सही प्रकार की बलिदान के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। Secondly, worship that pleases God requires the right spirit. और दूसरा जो विषय है आराधना सही प्रकार की आत्मा से, बस सही आत्मा से आराधना की आवश्यकता है। So two things, right sacrifice and also right spirit. और देखिए दो चीजें हैं, सही प्रकार की आराधना, सही प्रकार की बलिदान और दूसरा सही प्रकार की आत्मा। This evening we are going to learn how to walk with God. आज की संध्याकालीन समय में हम लोग जो है देखने वाले हैं कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। Hebrews chapter 11 verse 5 and 6. इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय 5वां और 6वां पद को देखेंगे। See, in order to save time, I will read it for you. Verse 5, by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. Before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Listen, here Enoch pleases God before he was taken.
he had this testimony that he pleased God. और देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला विषय को देखते हैं। वो विषय ये है कि जो स्वर्ग में जाने से पहले हानुक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। See, we have a lesson there, right there. Before we leave from this earth, we have to have a clear testimony before the people of God and also before God. और देखिए कि इस संसार को छोड़ने से पहले ही परमेश्वर के साथ एक सही नाता, सही रिश्ता और उसके साथ साथ संसार के लोगों के साथ भी हमारा नाता और रिश्ता सही होने की आवश्यकता है। Pleasing God in all things we do is our theme in the study of Hebrews chapter 11. और हम लोग जो इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय को हम लोग जो पढ़ते हैं, ये अध्याय में परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, ये हमारी मुख्य विषय वस्तु है। The important thing about a child of God or a disciple of Jesus Christ is that how to please God, how to please our master in our everyday life. और एक चेला होने के नाते सबसे मुख्य बातें एक चेला का जीवन का ये है कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो गुरु है, उसको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। See, from Abel, we learned that we must come to God by way of a blood sacrifice in order to get right with God. और देखिए हाबिल का जीवन से हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर को प्रसन्न करना जो है एक लहू का बलिदान ले करके आ करके परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। We know the importance of the precious blood that God has God through his son has shed on the cross for your cleansing and my cleansing. और हम लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे शुद्धता के लिए, आपके और मेरे जो पवित्रता के लिए उसने अपना पवित्र लहू को क्रूस पर बहाया है। So the precious blood has a great value as far as our restoration, our salvation, and also our confirmation before God, and then to worship him. और हमारा जो उद्धार का, अंकल once again repeat that sentence please. So the blood of Christ has an important role in our salvation, in our worship all the time. और देखिए प्रभु यीशु मसीह का लहू में बहुत महत्वता है हमारी उद्धार में, और उसके साथ साथ हमारी आराधना प्रत्येक समय जब भी हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं उसमें प्रभु यीशु का लहू का बहुत बड़ी मुख्य भूमिका है। In Enoch's life, we find out how to stay right with God, which we call walking with God. It is a lifestyle living in the ways of God. और देखिए हानु का जीवन से हमारा जीवन किस तरीके से सही रास्ते में, सही माध्यम में हम ले जा सकते हैं, कैसा अपना जीवन को एक सही दिशा और एक सही जीवन शैली हम व्यतीत कर सकते हैं, हानु का जीवन से हम देख सकते हैं। If you look at Genesis chapter 5, verse 21 to 24, I will read it for you again. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. Verse 22, after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. Verse 23, so all the days of Enoch were 365 years. Verse 24, and Enoch walked with God and he was not seen, for God took him. See, Enoch, the father of Methuselah, lived in the period prior to the flood. और हानुक को देखिए मेतुसलाह से पहले हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ उसने अपना जीवन को व्यतीत किया था। So he was lived in prior to the Noah's time flood. और हम लोग देख सकते हैं नूह का जो जल प्रलय आया था उससे पहले अपने जीवन को नूह ने व्यतीत किया था। We will understand that the nature of the human race during that period prior to the flood. और हम लोग देखेंगे कि उस समय जो है नूह के समय से पहले लोगों का जीवन शैली कैसी थी, उस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे।
they had a very wicked life. और वहां पर उस जमाने में उस समय बहुत ही क्रूरता का और दुष्ट भरी जीवन को वो लोग व्यतीत कर रहे थे। God was really sad about these people, the wicked ways they are living in. और परमेश्वर उनकी जीवन शैली से बहुत दुखी थे, क्योंकि बहुत एक दुष्ट भरा जीवन, एक बहुत ही गंदा जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे थे। See, Genesis chapter 6 verse 5 describes it like this. There the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. है हम लोग उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 5वां पद में हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर उस समय लोगों की मन जो है बहुत दुष्टता और क्रूरता से भरा हुआ था। इस बात को हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। The earth was no longer the paradise and the place of fellowship God intended. When he created, it was a beautiful place. और जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया था, उस समय एक पारदेश के समय एक स्वर्ग के जैसा धरती को बनाया था, लेकिन पाप के कारण अभी वो परदेश वो स्वर्ग के जैसा नहीं बना रहा। By the time of the flood, only Noah and his family still worship God. और देखिए, जो हम लोग जल प्रलय की समय को यदि देखें तो फिर नूह और उसके परिवार ही परमेश्वर को आराधना किया था। However, Enoch did not give into the pressures of his culture and try to live a politically correct life. और देखिए, उस समय हानोक ने क्या किया है ना, उस समय की जो राजतंत्र है, राजनीतिक है जीवन, उस तरीके से वो जो है लोगों को दिखावटी का सही जीवन, इस प्रकार की जीवन उन्होंने नहीं जिया था। We should not be under the influence of the circumstances and the culture of the country where we live, and also we don't need to be politically correct, that when people looks at everything is all right, but when God looks at everything is wrong. Politically correct is not a status for a believer in the Christian life. और देखिए, लोग क्या कर रहे थे, जब वहां पर जो पारंपरिक जीवन है, उस पारंपरिक के जीवन के जैसा नहीं जीना, या फिर जो राजनीतिक तौर पर यदि एक व्यक्ति को जीवन जीता है वो भी सही नहीं है, क्योंकि बाहर से राजनीतिक जीवन सही दिखता है, अंदर से सही नहीं रहता। उसी प्रकार से अपने जीवन को उसी तरीके से व्यतीत नहीं करना चाहिए। God is always interested in your heart. The matter of your heart is the real matter of it. और देखिए, परमेश्वर आपकी हृदय से जो है संतुष्ट रहता है, आपका हृदय को परमेश्वर देखता है। See, instead of by faith, Enoch walked with God. In spite of all this different environment he was living in, he kept relationship with God and he walked with God. और देखिए, भले ही बहुत सारे कठिन परिस्थितियां थी, बहुत सारे परेशानियां थी, फिर भी हानोक ने क्या किया है ना, परमेश्वर के साथ साथ चला है। So this evening I wanted to welcome you to consider 4 things in the life of Enoch if we are to know how to walk with God. और देखिए, आज के संध्याकालीन समय में मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसे विषय को साझा करने चाहता हूं कि हानोक का जीवन से कैसे हमें जो है अपना जीवन को परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। 4 important matters to consider. 4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। Number 1 is Enoch's persuasion about God. और देखिए, सबसे पहली बात है जो परमेश्वर के विषय में हानोक का विचारधारा, सोच और विचार कैसी थी। God doesn't want us to have a religion. He wants us to have a relationship with him. परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम एक धर्म को विश्वास करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ एक सहभागिता रखे, एक नाता और रिश्ता रख करके हम अपना जीवन को व्यतीत करें। He doesn't care where denomination you belong to, but he was interested the relationship that you and I maintain with God.
परमेश्वर कोई संस्था या कौन सी संस्था से आप जो है जुड़े हैं, उसको परमेश्वर ध्यान नहीं देते, बल्कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ आपकी नाता और रिश्ता है, उस बात को परमेश्वर ध्यान देते हैं। See, Enoch's faith was such that he was commended as one who pleased God. और देखिए हानोक का विश्वास इस प्रकार से था कि परमेश्वर ने उसको जो है क्या है ना उसके विषय में बताया है कि ये परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया है। That's why his name was recorded in the book of Hebrews, chapter 11, as Faith's Hall of Fame. और देखिए इसीलिए हानोक का नाम को इब्रानियों उसके 11 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि एक विश्वास का व्यक्ति के रूप में, एक विश्वास का हीरो के रूप में, नायक के रूप में उसका नाम उल्लेख किया गया है। See, the word faith in the original language in Greek, it says pistis. That means a firm persuasion, a firm conviction. देखिए विश्वास का मतलब इब्रानी भाषा में पिस्टोस कहा जाता है। पिस्टस का मतलब ये होता है कि एक दृढ़ता होना, किसी विषय के ऊपर आप दृढ़ रीति से भरोसा और विश्वास करना, उसके बारे में जानकारी होना। Romans chapter 4 verse 21 also affirms our faith in the Lord. It says what he has promised, he was also able to perform. देखिए रोमियो उसका 4 का 21 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा के अनुसार उस कार्य को परमेश्वर ने पूरा किया है, इस बात को देख सकते हैं। So Hebrews 11 verse 6 connects with the life of Enoch and reads, without faith it is impossible to please God. इसीलिए इब्रानियों उसके 11 का 6वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। See, now the question is, what kind of faith that pleases God? और सवाल ये है किस प्रकार की विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। First, we must believe that he exists, God exists. सबसे पहले हमें इस बात को विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की अस्तित्व है। However, faith that enables us to walk with God involves more than just believing in an impersonal creator, a creator we cannot see with our own naked eyes, an impersonal creator. It's not just like that. और हमें सबसे पहले विश्वास इस बात की होने की आवश्यकता है कि एक जो है देखते हैं कि जो सृष्टि करता है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इस प्रकार की भरोसा और विश्वास नहीं होना चाहिए। परमेश्वर एक व्यक्ति विशेष है, वो एक सृष्टि करता है, इस बात को हमें यकीन और भरोसा करने की आवश्यकता है। So we have to go deep into that relationship that God has with man. और सबसे पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के साथ एक मनुष्य का बहुत गंभीर और गहराई रिश्ता है, नाता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। See, I want to take you to Psalms 139 and I will read it for you from 13 to 16. Verse 13 says, "For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb." Verse 16, "Your eyes saw my substance, being yet unformed. In your book they all were written, the days fashioned for me, when as at these were none of them." See, the Lord is our creator. We know that we are fearfully and wonderfully created. और देखिए भजन संगीता 139 का 13 से हम लोग जो है 16 पद तक यदि देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपका और मेरा सृष्टि किया था। See, when you and I were being formed in our mother's womb, God was your personal God who had planned for your life. देखिए आपके जो है माता के गर्भ में जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे जब बनाया है, अद्भुत तरीके से माँ के गर्भ में आपको और मुझे परमेश्वर ने सृष्टि किया है। See, it makes no difference about the circumstances of your conception. God still loves you and had a plan for your life before you were born.
देखिए कि जब आपको जो है माँ के गर्भ में किस तरीके से आप गर्भ में थे, उस बात को परमेश्वर ध्यान नहीं देता, बल्कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। किसी भी तरीके से आप पैदा हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। For the day one of a person's conception in his or her mother's womb, God is specifically interested in their life. That's why abortion is wrong according to the Bible. देखिए, जिस दिन जो है माँ के गर्भ में हम लोग हमारी जो गर्भजात होता है, गर्भ में हम लोग जो है पालते हैं, उसी दिन से ही परमेश्वर जो है उस बच्चा को गठन करता है, परमेश्वर बनाता है। इसीलिए जो गर्भपात किया जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार वो पाप होता है। See, if you really believe that God is interested even the day of conception in your mother's womb, and He has a plan for your life, then you will never support this abortion. देखिए, यदि आप इस बात को विश्वास और भरोसा करते हैं, इस बात को आप यदि जानते हैं कि जिस दिन आप गर्भ में जात होते हैं, उसी दिन से परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जो है क्या है ना, परमेश्वर की बहुत बड़ी एक योजना है, तो ये गर्भपात का विरोध करेंगे। See, Enoch was firmly persuaded that God was not only the great creator God, but also a personal God with whom he could have a relationship. देखिए कि हानोक का जीवन को यदि देखें तो इतनी बात का उसको यकीन था, भरोसा और विश्वास थी कि परमेश्वर 100% उस जीवन के प्रति जो है, हानोक के जीवन के प्रति वो जानता था। So, apart from Enoch's persuasion about God, we have the next thing to focus is number 2, Enoch's meditation on God. देखिए, परमेश्वर के विषय में सोच और विचार जो हानोक का जीवन में था, उतना ही नहीं, बल्कि हानोक का व्हाट इज दैट पॉइंट अंकल? वन सेकंड, सेकंड पॉइंट। The meditation we have, यस यस ओके, तो meditation on God. यस, हानोक किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति वो ध्यान लगाता था, उस बात को हम देख सकते हैं। I know you all are very familiar with that word meditation. आप और मैं, हम सब के सब इस वचन से, इस वाक्य से परिचित है, जो ध्यान देने के विषय से। But I am not sure whether you know the deepest concept of that particular word as far as meditation is concerned. और मैं ये नहीं जानता कि आप इस बात को कितना गंभीर है और इस जो ध्यान का जो वचन है, विषय है, उस बात की गंभीरता को, उस शब्द का अर्थ को आप लोग जानते हैं। See, not only must we have faith in a creator and a personal God, but we must also believe that he rewards those who earnestly seek fellowship with him. और देखिए कि परमेश्वर आशीष देता है, उतना ही नहीं, लेकिन वो ध्यान पूर्वक जो लोग जो है परमेश्वर का पीछे चलते हैं, उस लोगों को भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। See, this means God will reward us if we earnestly seek fellowship with him. देखिए, उसका मतलब यह है कि जो हम लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसका खोज करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष भी देगा। See, we should understand Enoch meditated on God's spoken word since he did not have a Bible, because he earnestly or diligently sought him. और हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर को उसके पास कोई बाइबल थी ऐसा नहीं है, कोई वचन था ऐसा नहीं, बल्कि ध्यान पूर्वक परमेश्वर के पीछे पीछे वो चला था। See, the first step is walking with God is meditation. और देखिए, सबसे पहला जो विषय है परमेश्वर के साथ चलना, उसका मतलब परमेश्वर के प्रति ध्यान देना। How do you meditate on God's word? और परमेश्वर के वचन से आप कैसे ध्यान देते हैं? For example, if you know how to worry about something, you keep on thinking about the same thing and keep on worrying
isn't it? जब आपके जीवन में किसी विषय के लिए आपको चिंता होती है, तो उस चिंता करते समय उसी विषय के प्रति आप लोग जो है सोचते रहते हैं, है कि नहीं? See, the problem, someone said like this, the problem is not the problem, but you think about the problem and become over concerned about the problem is the problem. देखिए, समस्या कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उस समस्या के विषय में आप सोचते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा उसके विषय में चिंतित रहते हैं, तब जाकर के वो समस्या समस्या बन जाता है। See, sometimes the problem is not the problem. देखिए, कभी-कभार क्या होता है, जो समस्या समस्या नहीं होता। The problem is the incredible amount of overthinking that you are doing with the problem. देखिए, समस्या कब होता है कि उसके विषय में बहुत ही ज्यादा आप सोचने लगते हैं, तब वो समस्या और ज्यादा समस्या बन जाता है। I am sure that every one of us have this problem. We will be worrying about something, and then later on we will understand there was no point in our worries, and it is really a waste of time. और देखिए, उस समस्या के विषय में यदि देखें, वो समस्या समस्या नहीं था, और फिर बाद में हम लोग बेकार से उस समस्या के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लगे थे। One thing I wanted to tell everyone, as believers, we all should know that worrying is a sin. हमें एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हम लोग बहुत चिंता करते हैं, ये बहुत बड़ी एक पाप है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। Why did I say that? मैं ये बात आप लोगों से क्यों कहा? Worrying shows that you are not really believing in God and His promises. देखिए, चिंता का मतलब ये है कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उस प्रतिज्ञाओं के प्रति आप जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो चिंता को दर्शाता है। See, what I'm trying to say is we all are very experts in the matter of worrying. और देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो है चिंता का विषय के लिए हम सब के सब लोग जो है इस बात के लिए हम एक्सपर्ट हैं। I'm trying to explain about meditation. मैं आप लोगों को ध्यान देने के विषय को आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। So if you know how to really worry about something, you know how to meditate also. देखिए, किसी बात के लिए आप यदि चिंता करना जानते हैं, तो आप उस जो है ध्यान देना भी जरूर जानते होंगे। If you know how to worry, you know how to meditate. देखिए, आप यदि चिंता करने का विषय को जानते हैं, तो जरूर आप ध्यान देने के लिए भी आप जरूर जानते हैं। So when we worry, we take a negative thought and think about it over and over. देखिए कि जब हम लोग चिंता करते हैं, तो उसका नकारात्मक विषय को हम लोग देखते हैं और उसी के विषय में सोचने लगते हैं। When we meditate, we take a scripture portion and think about it over and over again with the purpose of applying it to our lives. देखिए, जब हम लोग ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर का वचन का एक भाग को हम लोग लेते हैं, उस भाग को बार बार सोचते रहते हैं, और उस भाग से कुछ सीख मिले तो अपने जीवन में उसको लागू करते हैं। I remember one servant of God explained meditation like this. और मुझे याद है कि एक प्रभु का दास ध्यान देने के विषय में इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया था। See, when a lion or a tiger in the forest, when it gets a big chunk of another animal's meat, देखिए कि एक जो है कोई जानवर का जो है मांस यदि कोई लायन को या फिर कोई शेर को मिल जाता है, तो see, the lion will take that big piece of a chunk of meat and lie down peacefully. देखिए वो क्या करता है ना, बहुत बड़ी वो मांस का टुकड़ा को लेता है और बहुत आराम से उसके पास लेट जाता है। Then he take a small bite of it, the big from the big piece, and then slowly start chewing it and enjoy the juice of the meat.
देखिए वो क्या करता है, बहुत बड़ी मांस का हिस्सा में से थोड़ा सा टुकड़ा को वो काट लेता है। काट करके थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करता है, उस मांस का आनंद लेता है, उसका जूस को वो चूस लेता है। See, after a while, he take another bite, और थोड़ी देर बाद फिर से एक टुकड़ा को और ले लेता है। chew it and get the juice out of the meat, and keep on doing this. क्या करता है, उसी टुकड़ा से वो काट लेता है, फिर से उसमें से पूरा के पूरा This is the जो best मांस की way of रसीलापन होती है उसको फिर से लेते हैं। और यही एक उत्तम देने का। this is the best way of meditation. और यही एक ध्यान देने की बहुत एक उत्तम माध्यम है। Take a small scripture portion and read it several times. Think over it or again and again. देखिए परमेश्वर का वचन का एक छोटी सी भाग को लेना और उस वचन के विषय में बार बार सोचना और ध्यान देने की आवश्यकता है। And get the message out of that portion of the passage. और उस भाग से जो संदेश है उस संदेश को अपने जीवन में लागू करना है। See, meditating or meditation is essential for walking with God. देखिए परमेश्वर के साथ चलना उसका मतलब जो है परमेश्वर का वचन को ध्यान देना बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। See, if you look in Joshua chapter 1 and verse 8, we see that what promise do we find to those who continually meditate on God's word and do everything written in it. और यहोशू का पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वां पद में हम लोग जो है उस प्रतिज्ञा को देख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर का वचन को लेते हैं और उस वचन से वे लोग मनन करते हैं, ध्यान देते हैं और उससे उनको क्या आशीष मिलती है उस बात को हम लोग देख सकते हैं। I will read it for you. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. और यहोशू उसका 1 अध्याय 8वां पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की और चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। See, what we are learning from this portion is that walking with God requires meditating on and obeying God's word. देखिए इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है, परमेश्वर के साथ चलना उसका मतलब परमेश्वर का वचन को हमें ध्यान दिए रहने की आवश्यकता है। See, Enoch's life is summed up in 4 verses in Genesis 5, and twice in those verses it is stated that Enoch walked with God. देखिए इनोक का परमेश्वर के साथ चलना 2 वचनों में जो है उसमें दर्शाया गया है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। See, in Isaiah chapter 59 and verse 2 says, what prevents us from walking with God? Isaiah 59:2. We read like this, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. और देखिए ऐसे नबी का पुस्तक उसका 59वां अध्याय 2 पद में हम लोग क्या देख सकते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है, क्योंकि वो नहीं सुनता। So the word iniquity usually refers to injustice, while sin refers to any conduct contrary to God's word. देखिए ये हम लोग देखते हैं कि पाप और अधर्म है, ये अधर्म जो है पाप को दर्शाता है, परमेश्वर से आपको और मुझे यही पाप ही दूर किया है। See, iniquity is injustice, but sin is a contrary rebelling against the word of God.
और अधर्म जो होता है, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ-साथ जो है तालमेल नहीं होना, और पाप जो हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के विरुद्ध जाने का हम लोग देख सकते हैं। If there is any lack of fairness in dealing with people or unconfessed sin in your life, you cannot walk with God. देखिए, किसी के साथ यदि झगड़ा, लड़ाई है, किसी के साथ तालमेल आपकी नहीं बनती है, तो परमेश्वर को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। If you fight with your wife at home on Sunday morning and then you go to church to worship, you cannot really worship God. और देखिए, सुबह इतवार की व संडे की सुबह में यदि आपका पत्नी के साथ आप यदि लड़ाई करेंगे और आराधना करने जाएंगे, तो आराधना को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। We have to keep our life very clear before God and before men. We have to maintain that unity with even our words, with grace. और देखिए, हमारी बातचीत में, हमारी तालमेल में, हमारी सोच और स्वभाव में अपना जीवन को वास्तव में सही तरीके से रखने की आवश्यकता है। अपनी बातों में, वचन में भी सही तरीके से अपना जीवन होने की जरूरत है। If you have unconfessed sin in your life and my life, we cannot walk with God. देखिए, यदि हम हमारी पापों को यदि परमेश्वर के सामने यदि नहीं माने हैं, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। See, Apostle Paul very clearly mentioned in the book of Ephesians, chapter 4, verse 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. और अंकल, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स Ephesians 4:31. और एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 31वें पद में पौलुस इस प्रकार से जो है विश्वासियों को शिक्षा देते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए करके वो कहते हैं। See, notice in that verse, conspicuously omitted from the list are sins like stealing, drunkenness, lying, murder, sexual immorality, etc. But he mentioned some other thing. देखिए, यहाँ पर जो है उन वचनों को उन जो पाप को यहाँ से दूर किया गया है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, इन सब पापों को यहाँ पर जो है लिस्ट में नहीं रखा गया है। But those are not the sins that usually prevents us from walking with God. It is the more subtle and sophisticated ones listed in the Ephesians 4:31. और देखिए, इस प्रकार की पाप जो है हम लोग देख सकते हैं बहुत भयानक पाप है, हम लोग इफिसियों उसका 4 का 31 पद में है। It's okay. Sound is not coming. Hello. Yes, coming, sir. Yes. Okay. So those sins that is referred in Ephesians 4:31 is really, that is the sins that we should be very much careful about it. All the other sins, severe sins we read there, that is all being taken care. There will be punishment for that. But the other thing, we just always keeping in our hearts, bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking, all these things, we are indulging in that. That is not acceptable before God. देखिए, जो बड़े बड़े पाप है यहाँ पर जो इस पापों को दर्ज नहीं किया है, लेकिन ये पाप भी बहुत ही भयानक पाप है। इन पापों को भी हम जीवन में जो है प्रत्येक दिन के जीवन में हम लोग कर लेते हैं, इसीलिए ये सब पाप भी परमेश्वर जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, इसीलिए इन सब पापों से भी हमें दूर रहने की आवश्यकता है। See, however, to walk with God, we must not only get rid of these sins, but what does Ephesians 4:32 says? To replace them with and be kind to one another. In verse 32, Ephesians 4:32 says, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. See, we need Christ-likeness in us.
देखिए, इफिसियों 4:32 में क्या पढ़ सकते हैं? और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी दूसरे की अपराधों को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के जैसा हमारे जीवन का स्वभाव होने की आवश्यकता है। To walk with God, not only we need to consider Enoch's persuasion about God and Enoch's meditation on God, the third thing is Enoch's proclamation for God. देखिए कि हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर के विषय में किस प्रकार से भरोसा और विश्वास है, उतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारा ध्यान कैसा है। तीसरा विषय हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के थर्ड Enoch's proclamation for God. पर परमेश्वर के लिए किस प्रकार से आप घोषणा करते हैं, परमेश्वर के विषय में दूसरों को कैसे बताते हैं। See, not only did Enoch go against the grain of his culture, but also he proclaimed God's faith to it. देखिए, हानोक ने क्या किया है ना, हम लोग देख सकते हैं कि हानोक ने जो है अपना जो कल्चर थी, अपना जो समाज थी, उस समाज के विरुद्ध में वो नहीं गया उतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के विषय में उसने घोषणा किया, लोगों को बताया। See, he was not worried about the culture at that time, but he was proclaiming the truth of the word of God. देखिए, उस जमाने में जो है उसकी समाज के विषय में वो ध्यान नहीं दिया था, बल्कि परमेश्वर के विषय में उस सच्चाई को लोगों के सामने उसने घोषणा किया था। See, though not mentioned anywhere else in the Bible, in Jude we find out that Enoch preached God's word as it was revealed to him. और देखिए कि हम लोग देख सकते हैं कि यहूदा का पुस्तक में जो है, और कहीं तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन यहूदा पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं कि हानोक ने परमेश्वर के वचन के विषय में उसने घोषणा किया था, प्रचार किया था। So what did he preach? If you look at Jude verses 14 and 15, we read like this. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, behold, the Lord comes with the 10,000s of his saints. And verse 15, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. That was his preaching. और देखिए हानोक का प्रचार किस प्रकार से थी, हम लोग यहूदा का पुस्तक उसका 14 वचन और 15 वचन में हम लोग देख सकते हैं। वहां पर देखते हैं, और हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की थी कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया और सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीन को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन हो करके किए थे, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। See, Enoch was preaching this, and that fulfilled in the flood when in Noah's time. और देखिए जो हानोक ने प्रचार किया था, ये जो भविष्यवाणी हम लोग देख सकते हैं, नूह के जो जल प्रलय हुआ था उस समय ये भविष्यवाणी पूरा हुई थी। We know that God is a God of love and mercy, but he is also a God who punishes sin. देखिए, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है, लेकिन परमेश्वर वो भी है जो पापों का न्याय करता है, पापों का दंड देता है। See, it is often overlooked today that Jesus taught more about judgment and hell than he did about rewards and heaven.
देखिए, ये हम लोग जो है बहुत ही इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने न्याय और नर्क के विषय में बहुत ही ज्यादा उन्होंने प्रचार किया था, ना कि परमेश्वर ने स्वर्ग और उसके प्रतिफलों के विषय में प्रचार किया। See, we read that Enoch continually, consistently walked with God for 300 years. देखिए, हानोक के विषय में हम लोगों ने देखा कि उसने 300 साल तक परमेश्वर के साथ-साथ चलता रहा। To have fellowship with God, we must continually meditate on God's word by reading it, by living it, and by sharing it. देखिए, हम क्या कर सकते हैं ना, परमेश्वर के साथ-साथ हम लोग चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो है हमें ध्यान दे करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपन जीवन को व्यतीत करके और उसके अनुसार अपना जीवन को अतिवाहित करके हम परमेश्वर के साथ-साथ चल सकते हैं। See, to know how to fellowship with God, we not only need to consider Enoch's persuasion about God and Enoch's meditation on God and Enoch's proclamation for God, but also the fourth thing is Enoch's translation by God. और देखिए, हमें जो है हानोक किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा, परमेश्वर के साथ चला। इन 3 बातों के जरिए ही नहीं, परमेश्वर के विषय में सोच विचार होना, परमेश्वर के जो विषय में जो है ध्यान देना, या फिर परमेश्वर को घोषणा करना, लेकिन परमेश्वर जो है क्या करता है ना, परिवर्तित करके उसको ले जाने का विषय को भी हम लोग देख सकते हैं। That was the most wonderful and amazing thing that happened after the walk of Enoch with God. देखिए, हानोक ने क्या किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय उसके जीवन में घटता है, घटित होता है, वो ये है कि परमेश्वर के साथ-साथ हानोक चलता रहा। वो बात को हम लोग देख सकते हैं। Are we really walking with God? क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ-साथ वास्तव में चलते हैं क्या? God was so pleased with Enoch that he did not want until Enoch died for him to come to heaven. देखिए कि हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर ज्यादा देर तक और सब्र नहीं किया, इंतजार नहीं किया कि मरने के बाद वो स्वर्ग में आए। See, God can't wait to Enoch to die and come to heaven. He was so much pleased with him and he wanted to take him with him. देखिए कि हानोक को परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मर करके स्वर्ग में आए। परमेश्वर क्या किया है, उसकी चाल चलन से, उसकी स्वभाव से परमेश्वर प्रसन्न होकर के उसको स्वर्ग लेके गए। Because of our experience with the walking with God, can we expect that God is expecting not to wait until our death? God wanted to take us home with him. और हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे मरने तक इंतजार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, आपका और मेरा विश्वास को देखते हुए हमको परमेश्वर जो है इंतजार करता है कि ताकि आपको और मुझे अपने संग ले चले। See, in Enoch's life, God can't wait, Therefore, Enoch was taken from his life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. देखिए कि हानोक का जीवन को यदि देखें तो फिर परमेश्वर इंतजार नहीं कर सका। जैसे ही परमेश्वर के साथ-साथ हानोक चलता रहा, परमेश्वर ने उसको अपने संग उठा करके लेके गए। In Genesis chapter 5, verse 24, we read that Enoch walked with God and he was not means he was not found after that, for God took him. और देखिए उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 25वीं आयत में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ-साथ जो है ये चलता रहा और उसके बाद वो ना पाया। उसका मतलब क्या देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसको उठा करके लेके गए। There was an interesting, beautiful story about Enoch walking with God and taken to heaven, spoken by an evangelist long time ago. I heard many years ago. It is like this. Enoch walked with God every day.
और देखिए कि एक सुंदर कहानी हानोक का विषय में हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के साथ-साथ वो चलता रहा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। एक प्रभु के बहुत बड़े एक सुसमाचार प्रचारक दासों के द्वारा मैंने बहुत साल पहले इस प्रकार से उस वचन को सुना था। See, God used to come to the front of Enoch's home every और day. देखिए प्रत्येक दिन परमेश्वर हानोक के घर के द्वार के सामने वो आया करते थे। They walked together and talked together. वो लोग क्या करते थे? वो लोग साथ-साथ चलते थे, वो साथ-साथ वार्तालाप किया करते थे। Every day it was happening. और प्रत्येक दिन ये घटना हो रही थी। They were talking and having a good time together. और वो लोग वार्तालाप करते थे और उन दोनों का बहुत एक अच्छा मेल मिलाप था, तालमेल थी। They became so close. और वे लोग एक दूसरे से इतना करीब ही हो गए। Their intimacy with one with another has grown so much. और इन दोनों की हम लोग देख सकते हैं जो करीबी इतना बढ़ गया है कि बहुत ही ज्यादा इन दोनों की करीबी बन गई। One day they walked and walked and walked and talked. They went so far from Enoch's house. और जैसे कि वो दोनों बातें करते करते चलते गए और बहुत दूर तक वो लोग चले गए। Oh, they reached near God's house. और वे लोग चलते चलते परमेश्वर के भवन तक वे लोग उसके करीब में पहुंच गए। At last they realized that it is so dark, too dark and too far from Enoch's house, but close to God's house. और क्या हुआ है ना, आखिरी में देखा जाए तो फिर पूरा पीछे देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ है। हानोक का घर बहुत दूर छोड़ करके आए हैं, लेकिन आगे देखा जाए तो फिर परमेश्वर के भवन के पास दोनों करीब में पहुंच गए हैं। It was so hard for both of them, for God and Enoch, to say bye to each other. और ये दोनों को जो है अलविदा कहने के लिए, बाय कहने के लिए बहुत कठिन समय थी। See, so God said to Enoch, और इसीलिए परमेश्वर ने हानोक से कहा, listen, Enoch, you are so far from your home now, but you are so close to my house. और देखिए हानोक से परमेश्वर कहते हैं, हानोक सुनो, तुम तो जो है तुम अपने घर से बहुत दूर हो, लेकिन मेरे घर के बहुत करीब हो। So I'm going to take you to my home tonight. और आज के रात मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाता हूँ। And we will be together and we will be having a sweet fellowship. और हम दोनों थोड़ा साथ में रहेंगे, एक अच्छी सहभागिता, बहुत सुंदर सहभागिता हम दोनों के बीच में होगा। So God took Enoch, and he was not seen for God took him. और देखिए हानोक ने क्या किया, हानोक को क्या किया, परमेश्वर ने अपने घर लेके गए, इसीलिए हानोक और फिर दिखाई नहीं दिया। I loved this story when I heard him saying, and still I love it. और उस समय जब वो प्रभु के दास ने इस कहानी को सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। Walking with God and talking us to his house, walking up to his house and taking to God's house. What a blessed experience Enoch had. देखिए परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना हानोक का जीवन में कितनी एक सौभाग्य की बात थी। Every one of us, those who really sincerely walking with God, listening to him and talking to him daily on a daily basis, will definitely love to go with him, and he wanted to take us home with him. और देखिए जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वो क्या करते हैं ना, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ वो जो है वार्तालाप करना चाहते हैं। See, after walking 300 years, walking with God, in an instant, God just took him. और देखिए 300 साल के पश्चात जो है हम लोग देख सकते हैं, चलने के बाद परमेश्वर अपने साथ उसको लेकर के जाते हैं। As the King James Version in Hebrews 11:5 says, Enoch was translated that he should not see death. और देखिए जो हम लोग देख सकते हैं किंग जेम्स की बाइबल में इस प्रकार से उसको अनुवाद किया गया है, हानोक जो है मृत्यु को ना देखे, इसीलिए उसको परिवर्तित करके परमेश्वर उसको लेकर के गए, हम लोग देख सकते हैं। See, the Bible does not say how God took him.
और बाइबल हमें नहीं बताती कि परमेश्वर ने उसको कैसे लेकर के गए। Only one other person in the Bible is described as being translated into God's presence was Elijah. और देखिए एक ही एक व्यक्ति के विषय में कहा गया है जो परिवर्तित होकर रूपांतरित होकर के परमेश्वर के पास गया, वो एलिया था। We read that in 2 King chapter 2 verse 11. और हम लोग जो है दूसरा राजा उसका हम लोग 2 Kings 2:11 दूसरा राजा दूसरा अध्याय का 11 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। So God may have taken Enoch like he translated Elijah. और हम लोग जैसे कि एलिया को परमेश्वर ने रूपांतरित किया था, परिवर्तित करके लेके गए थे, उसी तरीके से एलिया को भी लेके गए होंगे। See, it could be possible that Enoch's translation may have been like the translation of believers when Christ returns. और ये हो भी सकता है जिस प्रकार से हानुक को और एलिया को परिवर्तित करके परमेश्वर ने लेके गए, उसी प्रकार हम जो विश्वासी हैं हमारा भी उसी प्रकार से हो सकता है। See, how will believers who are alive when Christ returns be transformed into heaven? और देखिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, वापस आएंगे, उस वक्त विश्वासी लोग किस प्रकार से जो है रूपांतरित होंगे। See, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 says, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. और देखिए हम लोग जो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, हम जो जीवित लोग हैं हम भी जो है परमेश्वर के साथ जो है हम उस बादलों पर जा करके मिलेंगे। How God took Enoch is not important. That's why God doesn't tell us. और देखिए कि परमेश्वर के साथ हानोक कैसे रूपांतरित हो गया, परमेश्वर हमें ये नहीं बताता क्योंकि ये ज्यादा महत्व नहीं रखता। God doesn't want us to know how he took Enoch. That's not the interesting thing. Something else is important in the sight of God. और देखिए कि हम लोग क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसे लेके गए वो महत्व नहीं है, लेकिन और कोई बात यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। The important thing is not how or when he went, but where he went. देखिए कि वो कहाँ गया, कैसा गया, लेकिन कब गया वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। See, the same is true for you and me. मेरे प्यारो आपके और मेरे लिए भी ये सही है। It is not important when you die, where you die, or how you die. ये महत्व नहीं रखता कि आप कब मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं और कैसे मर रहे हैं। The only important thing is where you go when you die. मेरे प्यारो जब आप मरते हैं कहाँ जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है। If you like Enoch, believe that God is that he will reward you for seeking him through Jesus Christ, and you walk with God, then one day, maybe sooner than you think, you will go to be with God and find that God is pleased with you. देखिए बहुत जल्दी क्या होगा ना, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे और आप सोचे भी नहीं होंगे उससे पहले ही परमेश्वर के साथ आप रहेंगे, परमेश्वर के साथ आप जाएंगे। Make sure that you and I do everything that pleases God. इस बात को आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, जो कुछ भी आप करते हैं ये बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके कार्य से प्रसन्न होता हो। If God comes and call you to walk with him and take him home with you, are you ready? मेरे प्यारो यदि प्रभु आता है, आपको यदि अपने पास बुला लेता है, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? May the Lord help us to walk with the Lord and please him in all we do. मेरे प्यारो आओ हम सब के सब लोगों को परमेश्वर जो है जो कुछ भी कार्य करते हैं उस कार्य से परमेश्वर प्रसन्न हो और उसके साथ साथ हम चलते रहें। May his name be glorified. Thank you. परमेश्वर की उस महान नाम की महिमा हो। बहुत बहुत